Hello students, I am Pragati Kalambe welcomes you on my channel which is for the 12th Commerce Bifocal Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. Okay, today we are going to start the new part of banking too, that is mortgage. Okay? Now we are start with the topic mortgage and types of mortgage. Okay, now what is the mean by mortgage? Okay? Charge created on immovable assets in which possession and ownership remains with the customer. Mortgage is a one type of charge which is created on immovable assets. Now what is the mean by immovable? The assets which cannot transfer from one place to another place is known as immovable, which cannot move, in which possession and ownership. Okay, what is the mean by possession? That the possession means the physical appearance of the assets or physical appearance of that goods or security, and ownership means title of goods. Okay, in which possession and ownership remains with the customer. Mortgage is a charge in which possession, उस चीज का और assets का possession और ownership दोनों कस्टमर के पास ही रहता है, इस चार्ज को बोला जाएगा mortgage. And it is very important, mortgage includes the immovable assets. Only immovable assets पे ही mortgage create होता है, mortgage charge create किया जाता है. Okay, the parties of mortgage are mortgager and mortgagee. Okay, the mortgager is a person who transfers the asset. A person who transfers the asset. Assets कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? The person transfer the assets from customer to bank. Okay, और customer और mortgager क्या करेगा? वो जो assets हैं वो transfer करेगा to the bank, so the customer becomes mortgager and bank becomes mortgagee, because mortgagee means a person who accept the asset. बैंक क्या करेगा? वो assets, वो security accept करेगा. Okay, here यहाँ पे बोला है the person who transfers the asset and the person who accept the asset. हमें mortgage में देखा, mortgage includes the immovable assets. It means mortgage में actual assets transfer नहीं किया जाता. ओके, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके टाइटल होते हैं, टाइटल ऑफ ओनरशिप होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं. ओके, इट्स द पार्टीज आर मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. फॉर एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्म, कंपनी, फ्लैट, एग्रीकल्चर फार्म, हाउस, एक्सेट्रा. These all are the assets, these all are the securities which act as a collateral security while taking a loan from bank. Okay, next, this is one image. See, there is a one person who is giving his assets, immovable asset, that means his house, and he is another person, he is giving the loan or giving his amount against his house. Okay, now house is an immovable asset, so the person becomes the borrower. The borrower takes the loan or gives the mortgage. Okay, and this person becomes the lender who gives the loan and takes the mortgage. Okay, उसने क्या किया? अमाउंट दिया है, उसके अगेंस्ट उसने हाउस लिया है. हाउस इज इमूवेबल असेट, सो दिस प्रोसेस और दिस चार्ज इज कॉल्ड मॉर्गेज. ओके, द पर्सन हु टेक्स द लोन इज नोन एज अ मॉर्गेजर, और ये पैसा दे रहा है, लेंडर है, अमाउंट दे रहा है, दैट मीन्स बैंक इज अ मॉर्गेजी. ओके, टू पार्टीज, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. मॉर्गेजर इज अ कस्टमर, मॉर्गेजी इज अ बैंक. ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, आप कैसे याद रखोगे? मॉर्गेजर एंड विथ आर एंड कस्टमर ऑल्सो एंड विथ आर. सो आप लोग इनकी अगर फिलिंग ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, मॉर्गेजर इज नोन एज अ कस्टमर. क्लियर? नाउ while studying the types of mortgage, you have to keep in mind the three important things. The first is possession of the mortgage, second is ownership of the mortgage, and third, in case of default, sell or foreclosure. Okay, जब आप टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लर्न करोगे या स्टडी करोगे, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, पोजीशन किसके पास रहेगा. ओके, हु टेक्स द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज, हु takes the ownership of the mortgage, and in case of default means when the person or when the customer or when the mortgager fails to repay the money, the agreement becomes default, the customer becomes default. Okay, in case of default, bank, that is mortgagee, वो asset sell करेगा और foreclosure करेगा. Now what is the mean by foreclosure? Foreclosure का meaning है, in case default हो गया तो borrower जब लेंडर है, लेंडर को राइट है, लीगल राइट है, ही कैन कीप हिज असेट्स विथ हिम. ओके, फॉर एग्जांपल,
एक घर के अगेंस्ट लोन दिया है और बोरोर क्या किया, बोरोर ने लोन रिपेमेंट नहीं किया, ओके, देन बैंक हैज राइट टू सेल दैट एसेट। बैंक क्या करेगा, वो घर सेल कर सकता है और वो घर खुद के पास रख सकता है। जब बैंक को वो राइट है टू कीप दैट असेट्स और कीप दैट असेट विद हिमसेल्फ इज नोन एज अ राइट ऑफ फोरक्लोजर। ओके, समझ में आया? सेल करना है किसी थर्ड पार्टी को, वो सेल कर सकता है, और फोरक्लोजर का मीनिंग है खुद के पास ही रख सकता है, रिटेन कर सकता है। ओके, नाउ we will start with the types. Okay, first type is a simple mortgage, second mortgage by condition sale, third English mortgage, usufructuary. Okay, the pronunciation is usufructuary mortgage, mortgage by title deed, anomalous mortgage, legal mortgage, and equitable mortgage. Okay, these all are the types of mortgage, and for the first three types are very important and very easy types. Okay, नाउ वी स्टार्ट विथ सिंपल मॉर्गेज। ओके, जब भी हम लोग मॉर्गेज टाइप देखने स्टार्ट करेंगे, लर्न करना स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, हमेशा 3 पॉइंट्स हमें याद रखने, पोजीशन, ओनरशिप, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, सेल ऑफ फोरक्लोजर। ओके, लेट्स सी, ओनरशिप एंड पोजीशन रिमेन्स विथ मॉर्गेजर दैट इज कस्टमर। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, ओनरशिप और पोजीशन। हमने देखा था 3 चीजें हमें ध्यान रखनी, उसमें से 2 चीजें हैं ओनरशिप एंड पोजीशन। इन दैट केस ओनरशिप एंड पोजीशन रिमेन्स विथ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर के पास ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट, मॉर्गेजर हैव पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे द डेट। नाउ मॉर्गेजर इज अ कस्टमर, मैंने बोला था मॉर्गेजर के लास्ट में आ रहेगा, कस्टमर के लास्ट में भी आ रहे, दैट मीन्स मॉर्गेजर इज अ कस्टमर। कस्टमर हैव पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे द डेट, मीन्स कस्टमर ने लोन दिया है, कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे or to repay all the amount of the loan. Okay, and third point is, in case of default, mortgagee has right to sell the property and recover the money with the court's permission. Okay, in case of default, अगर default हो गया, repayment नहीं किया by mortgager, mortgagee has right, mortgagee means bank has a right to sell the property sell करेगा and recover the money with the court's permission. कोर्ट की परमिशन के साथ वो क्या करेगा, सेल करेगा प्रॉपर्टी, और जो भी अमाउंट है वो क्या करेगा, रिकवर करेगा। ओके, हमने 3 पॉइंट देखे थे जो हमें याद रखने हैं, वो 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। द फर्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप एंड पोजीशंस रिमेन विद द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर हैव पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे द डेट। थर्ड पॉइंट था, इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, सेल और फोरक्लोजर। तो ये सिंपल मॉर्गेज के केस में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मॉर्गेजी हैज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी and recover the money with the court's permission. Okay, now एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। See, Mr. A and Mr. समीर। Okay, अभी Mr. समीर ये क्या है, बैंकिंग पर्सन है। Okay, Mr. समीर is a banking person, so he is a mortgagee, और Mr. A is a borrower और he is a customer, so he becomes a mortgager. Okay, Mr. A borrow loan rupees 50,000 against the house. Okay, house is an immovable asset, so it is a mortgage. Clear? Now how it can be the simple mortgage? अभी ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करके देखेंगे। ठीक है, हाउस है, ओके, हाउस इज अ इमूवेबल एसेट, सो इसका पोजीशन जो है वो कस्टमर के पास ही रहेगा, पोजीशन रिमेन्स विद द मॉर्गेजर। ओके, मिस्टर ए उसका हाउस उठा के बैंक के पास नहीं दे सकते, हाउस इज अ इमूवेबल एसेट, इट रिमेन्स विद मिस्टर ए ओनली, मिस्टर ए के पास ही रहने वाला है, सिर्फ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे मिस्टर समीर, दैट मीन्स टू बैंक। ओके, सो ओनरशिप एंड पोजीशंस रिमेन विद द मॉर्गेज। ओके, देयर इज वन थिंग, ओनरशिप हमेशा कस्टमर के पास ही रहेगी, एनी केस, एनी चार्जेस, कौन सा भी चार्ज हो, ओनरशिप हमेशा कस्टमर के पास ही रहेगी जब तक कस्टमर रीपेमेंट नहीं करता। इन केस रीपेमेंट, पूरा रीपेमेंट किया मिस्टर ए ने, ओनरशिप रिमेन्स विद मिस्टर ए ओनली, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट मिस्टर ए ने रीपेमेंट नहीं किया, मिस्टर ए इज not able to repay all the money, the ownership will transfer to Mr. Samir, that means to the bank. Only in case of default ही ownership transfer होगी, otherwise in every case ownership will remains with customer, Mr. Mortgager or Mr. A. Clear? Okay, first point clear होगा, ownership and possession with mortgager, ownership and possession, house की ownership and house का possession will remains with Mr. A only. Mortgager have personal liability to repay the debt. Mortgager means Mr. E has a personal liability. उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that he has to pay all the amount of the loan.
Okay. Now, in case of default, mortgagee has right to sell the property and recover the money. In case of default, means Mr. A is unable to pay the amount. Mortgagee, that means Mr. Sameer, has right to sell the property. Mr. Sameer क्या करेगा? हाउस सोल्ड करेगा और अमाउंट रिकवर करेगा 50,000. क्लियर है? इसको बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज. ओके, क्लियर? नेक्स्ट सिंपल. द सेकेंड पॉइंट इज मॉर्गेज बाय condition set. Okay, condition set, that means there are conditions while giving the mortgage. Okay, there are three conditions. First, if loan is repaid, sale becomes void, that means illegal. अब पहले सिर्फ conditions देख लो. Now बाद में with example I will explain all three conditions. Okay, second, if loan is not repaid, sale become valid. Okay, these are the legal term void and valid. Void means illegal and valid means legal. Okay, ध्यान रखना है हमेशा. On the repayment, property is retransferred to the mortgagor. Mortgagor is a customer. Clear? In this case, possession and ownership transfers to the banker or mortgagor. Okay, अभी एग्जाम्पल देखेंगे, वो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा. Mr. A and Sameer. Okay, now Mr. Sameer is not a banking person. Mr. A is a friend of Sameer. ये दोनों फ्रेंड्स हैं. Mr. A, that is a mortgagor or customer, and Mr. Sameer is a mortgagee. Okay, Mr. A ने क्या किया? Borrow loan of ₹50,000 against his house. Okay, इसने यहाँ पे क्या किया? लोन बोरो किया from Mr. Sameer against the house. पर उसने इस केस में क्या किया? हाउस सेल किया. हमने सिंपल मॉर्गेज में देखा, उसने सिर्फ क्या किया था? घर उसके पास रखा था फॉर द सर्टेन पीरियड. आफ्टर दैट ही विल रिटर्न इट टू द मिस्टर ए. बट यहाँ पे इस केस में मिस्टर ए ने डायरेक्टली क्या किया? हाउस सेल किया है तो मिस्टर समीर को. सो ओनरशिप एंड पोजीशन ट्रांसफर टू द मिस्टर समीर. सिंपल मॉर्गेज में ओनरशिप एंड पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो मॉर्गेजर के केस में ही रहा था. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हाउस ट्रांसफर किया गया था या हाउस के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर किए गए थे. बट इस केस में क्या किया? मिस्टर ए ने पूरा का पूरा हाउस सेल कर दिया मिस्टर समीर को. सो ओनरशिप एंड पोजीशन ट्रांसफर. ओके, इसका मतलब सेल हुआ है. ठीक है ना. अभी हमने 3 पॉइंट्स देखे. इफ द लोन इज रीपे, सेल बिकम वॉइड. ओके, सेल बिकम वॉइड. अभी मिस्टर ए ने मिस्टर समीर से 50,000 लिए. आफ्टर सर्टेन टाइम, इफ इन केस मिस्टर ए ने मिस्टर समीर को पैसे रिटर्न नहीं किए तो ये दोनों के बीच में सेल हुआ है, वो सेल क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. ओके, इन लोन इज नॉन रीपे, सेल बिकम वैलिड. ठीक है, अगर लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो सेल वैलिड हो जाएगा. अगर मिस्टर ए ने पूरे के पूरे पैसे रिटर्न कर दिए मिस्टर समीर को, ये जो सेल है वॉइड हो जाएगा और मिस्टर समीर को उसका हाउस उसको रिटर्न करना पड़ेगा. अगर उसने पैसे रिपेमेंट नहीं किया तो ये सेल है वो जो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा और मिस्टर समीर वो घर खुद के पास ही रख सकता है. ठीक है. ऑन द रीपेमेंट, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजर. अगर मिस्टर ए ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया मिस्टर समीर को वो जो हाउस है वो हाउस मिस्टर ए को रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, रीपेमेंट करना पड़ेगा. इन दिस केस, पोजीशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर टू द बैंकर और मॉर्गेजर. सिंपल है, समझ में आया? ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं. मिस्टर ई, इफ द लोन इज रीपे, सेल बिकम्स वॉइड, दैट इज इलीगल. अगर लोन का रीपेमेंट कंप्लीट हो गया, वो जो सेल की प्रोसेस है, सेल का एग्रीमेंट है, वो कंप्लीट इलीगल हो जाएगा क्योंकि लोन का भी रीपेमेंट हो गया. इन केस इफ लोन इज नॉट रीपेड, सेल बिकम वैलिड, दैट इज लीगल. लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, वो जो सेल का एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड है, लीगल है. मिस्टर समीर वो घर खुद के पास रख सकता है. ओके, ऑन द रीपेमेंट, प्रॉपर्टी इज रीट्रांसफर टू द मॉर्गेजर. ए ने पूरा का पूरा रीपेमेंट कर दिया. 50,000 लिए थे, वो 50,000 रिटर्न किए. अभी मिस्टर समीर को वो घर क्या करना पड़ेगा? रीट्रांसफर करना पड़ेगा टू द मॉर्गेजर. ओके, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है. इन दिस केस, पोजीशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर टू द बैंकर और मॉर्गेजर. क्लियर? दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज. ये 2 टाइप्स हमने अभी देखे, वो अच्छे से आप लर्न करो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द मॉर्गेज. ओके, थैंक यू.